Greetings to all. So this is our next lecture and today's topic is type of geological map. In the previous lecture we have seen the geological field mapping, and this is the second part of the geological field mapping, in which we will going to discuss about the different types of geological map. So let's start the types of geological map. So types of map. So maps are of different type and each map is unique in its design, content and construction. Maps are broadly classified on two bases: scale, purpose or content. Based on the scale, there are two broad categories of the maps, that is large scale map and the small scale map. So basically if you're talking about the large scale map, so these maps represent the small area of the earth on a large size of paper, cloth, plastic sheet with a greater details. And the example of the large scale map is topographic map. Whereas small scale map are those maps which represent large areas on a small sheet of paper, and they have small details on the map. And the example of small scale maps are atlas, wall maps, and they give only a general picture of the area of that particular sheet of the paper. So बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मैप हैं और हर एक मैप का एक यूनिक डिज़ाइन होता है, कंटेंट होता है और एक कंस्ट्रक्शन होता है. सो बेसिकली मैप्स टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड हुआ है, जो कि ऑन द पर्पस ऑफ स्केल और कंटेंट. सो पहला है लार्ज स्केल मैप एंड दूसरा है स्मॉल स्केल मैप. लार्ज स्केल मैप वो होते हैं जो एक स्मॉल एरिया को कवर करते हैं इन अ लार्ज साइज ऑफ पेपर. मतलब एक छोटे सा एरिया जो कि अर्थ के कोई भी पार्ट का हो सकता है, एंड विच इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन अ स्मॉल साइज ऑफ पेपर और प्लास्टिक शीट, उसे हम बोलते हैं लार्ज स्केल मैप. और अगर स्मॉल स्केल मैप की बात करें तो स्मॉल स्केल मैप एक बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल शीट ऑफ पेपर पे, उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप. सो दीज आर मैप्स आर वाइस वर्सा बिटवीन ईच अदर. सो लार्ज स्केल मैप एक ऐसे मैप है जहाँ पे हमको स्मॉल एरिया देखने के लिए मिलता है अर्थ का, जो कि लार्ज साइज में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो रिप्रेजेंट करते हैं या तो पेपर के फॉर्म में या क्लॉथ या फिर प्लास्टिक शीट के फॉर्म में. और स्मॉल स्केल मैप ऐसे मैप होते हैं जो लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बट हम उसको स्मॉल शीट ऑफ पेपर में पुट करते हैं. मतलब हमारे पास बहुत सारी डिटेल्स है बट हम उसे शॉर्ट करते हैं या स्मॉल करते हैं, उसको जस्ट अ शीट ऑफ पेपर पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप. सो बेसिकली जो हमारे एटलास मैप होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडियन मैप हो गया या मैप ऑफ रिवर्स, सो दीज आर ऑल दी स्मॉल स्केल मैप जहाँ पे हमें लार्ज एरियाज तो है बट हम उन लार्ज एरिया को एक स्मॉल शीट ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. सो दोज आर मैप आर स्मॉल स्केल मैप. और अगर लार्ज स्केल मैप की बात करें तो लार्ज स्केल मैप में हमें एक स्मॉल एरिया मिलता है. फॉर एग्जांपल कोई भी एरिया के माउंटेन्स हो गया या फिर किसी की टोपोग्राफी फीचर्स को इंडिकेट करना है, तो वो एक स्मॉल एरिया हो गया अर्थ सरफेस का, जिसे हम लार्ज वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मैप. So in this way we have two main class of map, that is large scale map और small scale map. और large scale map का example है हमारा topographic map और small scale का example है हमारा atlas और wall maps. So these are the two main class or two main type of the map. Now we will see the large scale map, and the example of large scale map is topographic map. So basically topographic maps are those maps which is prepared on a fairly large scale. They are based on the precise survey conducted by the Survey of India. They show general surface features in details both natural and cultural. And the principle of topographic features depicted on these maps are relief, drainage system, swamp, lakes, forest, villages, towns, means of transport and communications like road and railways and the canals.
So basically all these information are gathered in a small area which we will represent in a large scale. So this is the large scale map, and the Indian topo sheets are generally prepared on the large scale map, and the ratio of these large scale map is 1:50,000. So these are the standard ratio of the large scale map. सो बेसिकली लार्ज स्केल मैप एक ऐसे मैप है जो लार्ज स्केल पे प्रिपेयर्ड होते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि लार्ज स्केल मैप स्मॉल एरिया होता है अर्थ सरफेस का, बट हम उनको लार्जली रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ क्लॉथ और पेपर और शीट, एंड दे आर बेस्ड ऑन द प्रिसाइज सर्वे। सो जब भी हम कोई मैप को बनाते हैं तो वो मैप प्रिसाइज सर्वे ऑफ इंडिया की हेल्प से बनता है, एंड दे शो द जनरल फीचर्स ऑफ द सरफेस और फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, चाहे फिर वो नेचुरल हो सकती है या कल्चरल हो सकती है। सो प्रिंसिपल टोपोग्राफिक फीचर्स जो मैप पे होते हैं वो होते हैं हमारे रिलीफ सिस्टम हो सकता है या ड्रेनेज सिस्टम हो सकता है, कोई स्वैम्प, लेक्स या फॉरेस्ट या विलेज, टाउन एक्सेट्रा, एंड दीज आर ऑल दी इंक्लूडेड एज अ लार्ज स्केल मैप। एंड इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन मैप, सो कम्युनिकेशन मैप में हमारे जो रोड्स मैप्स आते हैं, रेलवे मैप्स आते हैं या कनाल्स मैप्स आते हैं, सो दीज आर ऑल्सो दी लार्ज स्केल मैप। और अगर इंडियन टोपो शीट की बात करें तो इंडियन टोपो शीट जनरली प्रिपेयर्ड होती है ऑन अ स्केल ऑफ 1:50,000। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको वाइवा में भी पूछ सकता है कि टोपो शीट की स्केल क्या होती है। तो टोपो शीट की स्केल होती है 1:50,000। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज़ दी 1:50,000, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं, इवन आपको प्रैक्टिकल सेशन में भी पूछ सकते हैं कि इंडियन टोपो शीट जो होती है वो जनरली कौन सी स्केल में प्रिपेयर्ड होती है। तो हमारी जो मैक्सिमम जो टोपो शीट्स होती है इंडिया की, या इंडियन टोपो शीट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड ऑन द स्केल ऑफ 1:50,000। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज़ द टोपोग्राफिक मैप विच इज़ अ लार्ज स्केल मैप जो लार्ज स्केल पे प्रिपेयर्ड होता है। और बेसिकली जब हम ये मैप बनाते हैं, प्रिसाइज सर्वे करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड जनरली दीज मैप शो द नेचुरल डिटेल्स और द कल्चरल डिटेल्स। एंड अगर हम इसकी टोपोग्राफिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें ड्रेनेज सिस्टम देखने के लिए मिल सकते हैं, फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, विलेज, टाउन या फॉरेस्ट या ट्रांसपोर्ट, and so many types of large scale map we have। and अगर communication की बात करें तो जैसे railway, roads, canals, electric canals, so there are so many types of communication large scale map। so this is the basic example of large scale map, that is topographical map which represent the particular thing or particular area। now next, so this is a topographic map, and this map is a two-dimensional map, two-dimensional model of the earth surface representing the 3D model। so this is a topographic map, and topographic map is also known as the contour maps। and what are contours we have already discussed in the previous lecture, and आपको मुझे बताना है कि what are the contours। so if you know what are the contours you can write down in the comment section। so these are the contours, and this is the contour map। so this is the 2D information of topographic map, where we will or we can convert the 2D topographic map into the 3D map। so this is a 3D map। so basically this is a contour map which show the mountain। so this is the 2D formation, and if you're talking about the 3D, so this is a 3D posture or 3D position of these contour maps। सो ये हमारा टोपोग्राफिक मैप है जो कंटूर्स मैप जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये जो है जैसे 0, 50, 100, सो दीज आर दी कंटूर्स। सो ये 2D फॉर्मेट में है, बट ये इंडिकेट करता है हमारा माउंटेन्स फॉर्मेशन, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम 0 से 100 की तरफ जाए, मतलब कम डिजिट से ज़्यादा डिजिट की तरफ जाए, वो इंडिकेट करता है हमारा हिली एरिया, और अगर हम ज़्यादा डिजिट से कम डिजिट की तरफ जाए वो हमारा इंडिकेट करता है बेसिन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक इन द प्रीवियस लेक्चर, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। सो दीज आर दी कंटूर्स। कंटूर्स मतलब
इक्वल एलिवेटेड पॉइंट्स जहाँ पे जॉइन होते हैं उसे हम कंटूर्स बोलते हैं। और भी बहुत सारे डेफिनेशन है जो आपको अगर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सो दीज आर दी कंटूर। सो ये हमारा 2D फॉर्मेशन है, 2D मैप है, और ये है 3D मैप ऑफ दीज टोपोग्राफिक मैप। ठीक है। सो दिस इज मेन सी लेवल, देन दिस इज द इमेजिनरी सरफेस एंड दिस इज अगेन द इमेजिनरी सरफेस। सो ये जो 3D में अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब यहाँ पे एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है और यही इसका 2D फॉर्मेशन है, 2D मैप है। सो दिस इज द टोपोग्राफिक मैप एंड द एग्जाम्पल ऑफ द टोपोग्राफिक मैप। एंड टोपोग्राफिक मैप जैसे कि मैंने बताया इज ऑल्सो नोन एज द कंटूर मैप्स which show the elevation above the sea level using the contour line. So this is the topographic map and which is also showing the contour lines. So this is 3D or real world we can see, and this is the contour maps. So ये हमारा real mountains है और ये उसका contour maps है। ठीक है। सो अगर हम 2D में देखेंगे तो ये माउंटेन्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे, और अगर हम उस माउंटेन्स को 3D में देखेंगे और रियल में देखेंगे सो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेंगे। सो बेसिकली अ टोपोग्राफिक मैप इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D फॉर्मेट इनटू द 3D फॉर्मेट। सो दिस इज द टोपोग्राफिक मैप, 2-dimensional मॉडल ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज रिप्रेजेंट इनटू द 3D मॉडल। सो जैसे कि मैंने बताया कि टोपोग्राफिक मैप कोई भी चीज़ के हो सकते हैं। ठीक है, विलेज के हो सकते हैं, कोई ड्रेनेज सिस्टम के हो सकते हैं, फॉरेस्ट के हो सकते हैं, वेजिटेशन के हो सकते हैं, या लैंड फीचर्स के हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ टोपोग्राफिक मैप विच शोइंग द लैंड फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। So cadastral map. What are the cadastral maps? So basically the cadastral map or the cadastral term is derived from the French word cadastre, which meaning the register of territorial property. So cadastral map एक ऐसा मैप है जो कि टेरेस्ट्रियल प्रॉपर्टी को डिराइव करता है। फॉर एग्जाम्पल द मैप्स आर ड्रॉन टू रजिस्टर द ओनरशिप ऑफ द लैंडेड प्रॉपर्टी बाय डिमार्केटिंग द बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड्स और द बिल्डिंग। मतलब एक ऐसा मैप है जहाँ पे हमें कोई भी एक एरिया की बाउंड्रीज और जो ओनर होता है उस एरिया का, उस एरिया की डिमार्केटिंग करता है बाउंड्रीज ऑफ फील्ड या फिर बिल्डिंग्स की, या फिर प्रॉपर्टी का जो लैंडेड प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी के जो मैप होते हैं उस टाइप के मैप को हम बोलते हैं कैडेस्ट्रल मैप। और जो कैडेस्ट्रल वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है जिसकी मीनिंग है रजिस्टर ऑफ टेरिटोरियल प्रॉपर्टी। So this is a very important point. Cadastral map are those map which is represent the property of that particular area. उस एरिया में या फिर बाउंड्रीज आ सकती है, फील्डिंग आ सकती है, या बिल्डिंग आ सकती है, कोई भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, या फिर मटेरियलिस्टिक हो सकती है, या फिर लैंडेड प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इस टाइप के जो मैप होते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी बनती है उसे हम बोलते हैं कैडेस्ट्रल मैप। They are specially prepared by the governments to realize land revenue and the property taxes. So ये जो मैप है ये गवर्नमेंट के थ्रू प्रिपेयर्ड होते हैं और जहाँ पे हम लैंड रेवेन्यू कर सकते हैं और टैक्सेस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एरिया का मैप अगर गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है तो वो वहाँ जब जैसे ही वो मैप बनता है तो वहाँ से उसके टैक्स शुरू हो जाता है, तो उस एरिया का वो टैक्स लेना शुरू कर देती है, बिकॉज दोज आर स्पेशली प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। सो अगर गवर्नमेंट के थ्रू इस टाइप के मैप प्रिपेयर्ड हो रहे हैं तो वहाँ पे टैक्स लागू हो जाता है, टैक्स अप्लाई हो जाता है और फिर वो उस पर्टिकुलर एरिया का या प्रॉपर्टी का टैक्स लेना शुरू कर देती है। सो दिस टाइप ऑफ मैप्स आर दोज द कैडेस्ट्रल मैप. So if you're talking about the village map of our country, may be cited example of the large scale map, and these maps are drawn on a very large scale varying from 60 centimeter to a kilometer to 32 centimeter and to a kilometer, so as to fill in all possible details. So these are the example of, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है विलेज का कि अगर कोई भी एक विलेज में हम लार्ज स्केल मैप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ अगर गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है लार्ज स्केल में
तो टोटली जो भी हम इंफॉर्मेशन उसमें फिल करते हैं वो पॉसिबल डिटेल्स जो होती है वो विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू हम फिल करते हैं। और आफ्टर डैट जैसे ही वो मैप प्रिपेयर होता है तो जैसे कि मैंने बताया कि उस प्रॉपर्टी का रिवेन्यू होता है एंड देन टैक्सेस उस पर अप्लाई हो जाते हैं। एंड दीज मैप्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। सो इस टाइप के जो मैप होते हैं ये भी कैडेस्ट्रल मैप में ही इंक्लूड हो जाते हैं। सो बेसिकली हमने टोपोग्राफिक मैप देखा जहाँ पे हमें फीचर्स, लैंड सरफेस फीचर्स स्मॉल एरिया में के होते हैं जो कि हम लार्ज स्केल मैप में देख सकते हैं। और कैडेस्ट्रल मैप आर दोज मैप विच आर ऑल्सो अ लार्ज स्केल मैप, और जहाँ पे हम कोई भी पर्टिकुलर लैंड प्रॉपर्टी आर बाउंड्रीज और बिल्डिंग्स का जो मैप बनता है उसे हम बोलते हैं कैडेस्ट्रल मैप, एंड विच आर प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के कैडेस्ट्रल मैप जो होते हैं वो लैंडेड प्रॉपर्टी या कोई भी बाउंड्री या बिल्डिंग के होते हैं और जो कि गवर्नमेंट के थ्रू प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैडेस्ट्रल मैप्स। सो द नेक्स्ट इज physical or natural maps, so in which we will see the orographic or relief map, bathymetric maps, geological maps, climate maps, natural vegetation maps, and the soil maps. In the previous slide we have seen the large scale map and small scale map, and in large scale map in which we have seen the topographic map and the cadastral map. Now we have the other type of map which are on the basis of physical or natural maps. So on the basis of physical or natural maps we have these different type of map. The first we have the orographic maps or relief map. So orographic maps are those maps which represent the feature like mountains, plains, plateaus and drainage patterns. So orographic maps वो maps होते हैं जो माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज लाइक फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं ओरोग्राफिक मैप्स। बैथीमेट्रिक मैप्स की बात करें तो बैथीमेट्रिक मैप्स आर दोज मैप विच शोज द डेप्थ ऑफ द ओशंस एंड सी, एंड उसे हम बोलते हैं बैथीमेट्रिक मैप्स, and they are also known as the charts. And geological maps are those maps which represent the rocks of the earth crust and their mode of occurrence and deposition. And अगर climate map की बात करें, so climate maps are those maps which shows average condition of temperature, pressure, wind and precipitation of the world or a part of it, which is over a long period of time. And natural vegetation maps show natural flora of an area or a region, and soil map exhibits various type of soil and covering the area. So these are the physical और natural maps. So आप इस वीडियो को पॉज करके भी इजीली पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इफ़ अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये मैप को भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास लार्ज स्केल मैप है एंड स्मॉल स्केल मैप है, और अदर टाइप में ये सारे मैप आते हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल और नेचुरल पैरामीटर्स डिवाइड हुए हैं, इन विच वी हैव ओरोग्राफिक मैप जो रिलीफ को रिप्रेजेंट करते हैं, बैथीमेट्रिक मैप जो डेप्थ ऑफ ओशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जियोलॉजिकल मैप जो रॉक्स ऑफ द क्रस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लाइमेट मैप जो कि टेम्परेचर, कंडीशन और प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नेचुरल वेजिटेशन मैप एंड सॉइल मैप्स इज ऑल्सो various type of map which covering the soil of that particular area. So these are map are also important. So अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप ये फिजिकल और नेचुरल मैप भी लिखिए। So this is all about the geological map of the type of geological map. So this is the end of the lecture, and if you have any doubt or question you can ask in the comment section. So this is the second part of the geological field mapping, and in the geological field mapping we have seen the different types of geological field mapping, different types of tools which are used in the geological field mapping, and this is the second part of that lecture in which we have seen the types of geological map, and in which we will see the large scale map, small scale map and physical or natural scale map.
So we have completed so many topics regarding with the uh, subject or fifth unit. So if you have any doubt or any question, you can ask whenever you want, and please mention your roll number in the comment section, and please do prepare your notes with the help of lecture series, because this is very important. Please don't take it lightly. uh, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप विद द हेल्प ऑफ दीज लेक्चर सीरीज़ आप यू कैन मेक योर ओन नोट्स with your own format, so it will be acceptable. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर चीज़ के नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ. सो इफ़ यू वांट to do make notes, so this is very precious time to make notes for your in your own format. And if you have any queries तो फिर मैं हूँ, you can ask me whenever you want. So this is the end of the lecture, and if you have any doubts or query, you can ask in the comment section. Mention your name in the comment section and roll number also. So that's it. Stay safe, stay healthy. Thank you.